Well, obviously, we learned a hard lesson. As a team, I think we had our moments, but we couldn't grab those. Obviously, 3-0 is not something I think we were looking for as a team. We think like, we did something really well in this series, but the crucial moments of the game, we couldn't win that, and that's the reason obviously resulted in a 3-0 in this series. I think it's something as a captain, because every bowlers were available, but it's a captain tactics. But obviously the one thing was very sure, that we wanted to bowl more from the off spinner, because this track can offer a lot of assistance to the off spinner from the other end, from the far end. But the rest of the things, obviously the captain, whoever he thinks the best, he proceeded accordingly. Well, I think tactically, I think yes, he should have bowled earlier. But yes, as I said to you, like sometime inside the captain is the best of, the judge who he feels like it by tactics. So you always have to back that up. You are absolutely right. What I said that time, that is absolutely, the statement will remain the same. Yes, we lost the series, but the idea was behind it only to watching the talent of the players, and we seen some glimpse of it. There were certain moments of the game where we should have that. We should grab those opportunities, can make a major difference, especially in the Melbourne when they were 16 for 4. We couldn't grab those couple of moments. Resulted in a way it could have been 140, 150. We need to chase, but it went up to 300 plus. It's a game of even here we dropped some of the catches in the second, in the first innings. Mitchell Marsh got dropped by Saim Ayub. These are the moments I believe we didn't drop the catches. I believe we dropped the winning moments of the game. So I think that is obviously the highlighted negative side of our team, is basically our fielding. We need to really work hard on this, because we as a coaching staff, I know that every coach really worked really hard on it, but unfortunately as the player went inside, they couldn't respond accordingly. But this is the one area I believe we need to work on. All I would say, playing the cricket with the right spirit of the game. Our captain led the side very well. He made a very, very right calls at the very right time, because it's not all about your cricket, it's about how you behave as an ambassador. So I think he did most of the things very rightly. And then when it comes to the game, I think Amir Jamal is someone we all praising him for the right reason, because he stood tall, he stood up on an occasion. Obviously before that he was not being given enough good chances at that level, but when you wait for your opportunity positively, it comes up very positively to you. So I think he's one of those guys who was waiting for this opportunity, and once he's been presented, he grabbed it in both hands, and really proud of it. Definitely red ball is one of the priority of the team, of the cricket board, and we will certainly do some of the more things in red ball cricket, because as long as you are close to the red ball cricket, you can play all formats. So that is the objective we wanted to achieve as a team, to prioritize red ball cricket. And I think in this series we presented the right opportunity to the right guys. Saim Ayub is one of those. Yes, he couldn't play a big innings, but he's shown that glimpse of the talent he has. And I'm sure this guy and rest of the guys, Khurram Shahzad got injured after one test. He's shown the glimpse of a very good test bowler. So we as a team would like to grow as a test team that will help all formats, all the players to play any format of the game. Well, to be very honest, we had a meeting with the Cricket Australia chairman and CEO, and they agreed on an exchange program, because we wanted to have more visiting teams from Pakistan, under 19, Pakistan A and women team, to visit Australia on a regular basis. And similar, we can offer the same exchange program to these 3 teams in Pakistan. So that will help both the teams in future, and that is obviously, you will see very soon, the agreement will be signed. And the objective is all about that we come here on a regular basis and they come in Pakistan on a regular basis, just to develop the game of within the 2 countries, because we need a practice more in these conditions and they need more practice in Asian conditions. So this is what we already discussed, and I'm very sure very soon you guys will come, you will came to know this agreement has been signed. So this is very, very good moment as a cricket board, the both boards basically want to work with each other for the right reason. More confident? Do you think he's quite close? Well, personally, I believe when you don't perform well,
perform well in a way when you don't score big runs, obviously the pressure piles up on you as a cricketer. But the amount of effort he puts in, every day he comes in the nets, he's the first person to start the batting, he's the last person to leave the nets. And the amount of attitude he has, he always wanted to learn, he always wanted to give something. So I have no doubt that someone having that much attitude, that good attitude can come back very soon. So basically, technically he's a very solid player, but obviously the lean patch of not performing well enough is one thing obviously he must be thinking of, but I have no concern on it, because I believe that he's putting the right effort behind it and the thing will come starting in his ways very soon. Listen, when it comes to the management, the guy, when I asked him after the 2 test matches, obviously he bowled really well in those 2 games. He bowled the most overs from the Pakistan side, and I'm sure maybe in Australian side too. But when I asked him in the 3rd test, before the third test, his body was sore, and I need to look after the guy better than any other thing, because if someone is thinking within his body that his body is sore and he cannot deliver the best, so we need to look after the career of an individual also, because I never will make any decision where any player can lose his career for 6 months or 1 year time. So I never will make any of this decision. So when this thing come up to me, obviously I spoke to the medical team, and that's what the decision it was a tough call, but we made that decision for the betterment of a player, because as I said to you, I cannot make that decision on the cost of a career of any individual. कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, आपका नाम है, आपका कैरियर है, आपने अपना कैरियर खुद बनाना है। मैं ये समझता हूँ कि रेड बॉल क्रिकेट जो जितनी खेलेगा उसके सारे स्किल शाइन होंगे और वो सारे फॉर्मेट्स खेल सकता है। स्टेइंग अवे फ्रॉम रेड बॉल क्रिकेट आप अपने आप को मुश्किल हालात में डालते हैं, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट ही आपके स्किल्स को पॉलिश करती है। नसीम ऑब्वियसली इंजर्ड था, हमारे मेन प्लेयर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके बगैर टीम नहीं चलेगी या उनकी इंजरी की वजह से टीम को बहुत नुकसान हो रहा है। उनकी जगह हमारे पास आमिर जमाल आ गए। हारिस रऊफ़ ऑब्वियसली वो हम उसको पहले बात कर चुके हैं। शाहीन को भी लेके इस मैच के लिए हमने इसलिए फ़ैसला लिया था कि हम नहीं चाहते थे कि हमारा प्लेयर जो है वो वर्कलोड या उसके जिस्म की कोई ऐसी चीज़ ख़राब हो, क्योंकि हमें पता है पिछले पूरे साल में शाहीन ने बड़ी मेहनत की है और उसकी इंजरी के बाद से आके जो उसके ऊपर वर्कलोड उसके ऊपर पड़ा वो बहुत मैसिवली था। तो हम चाहते थे कि उसको मैक्सिमम ब्रेक्स भी मिलें ताकि ड्यूरिंग हिज कैरियर उसकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो राइट वे में मैनेज हो। मुझे नहीं पता इससे पहले क्या हुआ, लेकिन इस महीने में आई वांटेड टू मेक श्योर कि वो किसी भी तरीके से कोई भी बॉलर या कोई भी ऐसा प्लेयर वो इस इशू में ना आए कि वो वर्कलोड की वजह से जो है उसकी कैरियर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन यह है कि इक्वली वेरी हैप्पी कि हमने जिन डोमेस्टिक के प्लेयर्स को इस सीरीज़ के अंदर सिलेक्ट किया उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। आई एम टॉकिंग अबाउट खुरम शहजाद, आई एम टॉकिंग अबाउट मीर हमज़ा, टॉकिंग अबाउट आमिर जमाल। तो ये वो प्लेयर थे जो सिस्टम में मौजूद थे, लेकिन इनको अनफॉर्चुनेटली मौका प्रेजेंट नहीं किया गया। तो मुझे ये खुशी है कि इस पूरे टूर के ऊपर जो सबसे पॉजिटिव साइन था वो हमारे वो प्लेयर जो सिस्टम में मौजूद होने के बावजूद राइट अपॉर्चुनिटी शायद उनको नहीं मिल रही थी, जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली तो उन्होंने इसको ग्रैब किया और उसको मैक्सिमाइज़ किया। मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल T20 की वजह से शाहीन को रेस्ट नहीं करवाया गया कि उसने T20 क्रिकेट खेलनी। ये क्लियर है कि उसकी बॉडी सोर थी, ही वॉज़ नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकेगी। तो मुझे एज ए टीम डायरेक्टर ये मेक श्योर करना है कि मेरा कोई भी प्लेयर वो उस जोन में ना चला जाए जहाँ पे वो इंजर्ड हो जाए। तो मैंने उसको उस जोन से पहले उसको रिकवर करने के लिए इनफ टाइम दिया। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि जो हमारी कनेक्टिंग सीरीज़ है वो क्योंकि उसके कप्तान भी हैं और ऑब्वियसली उसमें से पूरा उसको ऑफ करना भी बड़ा मुश्किल था कि वो पूरी सीरीज़ कैसे उसमें से लेके एक अगर कप्तान अनाउंस हुए हैं तो उन्होंने जब खेलना है तो उन्होंने एज ए कप्तान खेलना है। तो अगर वो सीरीज़ ना होती तो फिर आई कुड पुश हिम, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शायद उसको अगर वो ये, लेकिन फिर भी शायद डिसीजन यही होता टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर एक प्लेयर वो ये समझ रहा है कि उसकी बॉडी सोर है और वो अल्लाह ना करे उसके ऊपर लोड इतना पड़ सकता है कि वो इंजरी जोन में चला जाए, तो मुझे ये मुश्किल डिसीजन करना पड़ा कि एक प्लेयर को मैं उस जोन में ना लेके जाऊं जहां पे वो तकलीफ़ में आ जाए। लेकिन आई थिंक कि जो आगे आने वाली सीरीज़ होगी, जब भी शाहीन का वो वर्कलोड मैनेजमेंट और उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, डेफिनेटली ही विल प्ले द गेम्स। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। मैं फिर आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली है। देवर सम मोमेंट्स जो हम नहीं ग्रैब कर सके, देवर सम मिस्टेक्स वी मेड एज ए टीम, जैसे कि
आपका मेलबर्न के अंदर जो कैचेस ड्रॉप करना है वो आपको कॉस्ट कर गया पूरा मैच, अदरवाइज इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। आप किसी भी रेलिवेंट क्रिकेटर को पूछें या किसी भी ऐसे अंडरस्टैंडिंग वाले बंदे को पूछें, वो यही बताएगा कि हम उस वक्त अपर हैंड थे, बट वी मिस द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ कि पहले बैटिंग टॉस जीतने के बाद जो हमारी बैटिंग थी, जो आमिर जमाल ने जो बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, उन्होंने हमें वो स्टेज ला के दे दी जहाँ पे हम लोग चैलेंज कर सकते थे ऑस्ट्रेलियन टीम को। वहाँ पे हमारा वो जो कैच छोड़ना दोबारा से फिर हमारे जो है वो हमें तकलीफ़ में ले गया। हम लोग वो जो विनिंग मोमेंट्स थे हमने वो मिस किए, और हमने वो अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास थी उसको ग्रैब नहीं किया। तो ओवरऑल क्रिकेट अच्छी खेली, मिस्टेक्स की जो मैंने आपसे बात की। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि दूसरी इनिंग्स, यस, वही प्लेयर अगर पहली इनिंग्स में अच्छा खेलता, दूसरे में अच्छा नहीं खेलता, तो देयर समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लेयर को भी उसके अंदर जो है स्टेप अप करना है। क्योंकि पहली इनिंग्स और दूसरी इनिंग्स खेलने की जो माइंडसेट है, जो एक फटीग लेवल आपकी बॉडी में जाता है, उसके बाद जब आप रिस्पॉन्स करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वी नीड टू वर्क ऑन। और एज ए टीम वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सी चीज़ें हमारे सामने जो हैं वो आई हैं, और वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दोस्त। क्योंकि जब भी आप अपनी क्रिकेट खेलें, आप अपनी गलतियों से जब तक नहीं सीखेंगे और सीख के उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, राइट स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। और इसके ऊपर हमारी इंडिविजुअल भी बात हुई है, और इंशाल्लाह ताला इस सीरीज़ के बाद भी हम अपने प्लेयरों को वो अलाउ करेंगे कि वो अपने उन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करें, ताकि जब वो वापस आएँ तो वो उसमें बेहतरी जो है वो आई हो। ठीक कह रहे हैं, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन इसमें सबसे पहले डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल क्या सोचता है। अगर आपका इंडिविजुअल जो भी वो प्लेयर है, जैसे शाहीन के पास जब ये ऑप्शन थी तो उसकी बॉडी सोर थी, ही स्पीक अप, उसने मेरे साथ बात की कि मुझे हफीज़ भाई ये मेरी बॉडी ये रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर बाबर को किसी भी वक्त लगता है कि उसको किसी भी जगह पे हम उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, उसकी टैक्टिक्स के अंदर, उसकी टेक्निक के अंदर, या उसकी मेंटल साइड को देखते हुए, तो वी आर ऑलवेज देयर। लेकिन जब तक जो इंडिविजुअल है, अगर उसको लगता है कि ही इज़ डूइंग थिंग्स वेल, और हमें भी लगता है कि लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क ही पुट्स इन, जब भी नेट में वो आते हैं वो अपनी एनर्जी, अपनी हर चीज़ें बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन वो खेल भी अच्छा रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब वो ग्राउंड में जा रहे हैं तो वो अच्छा नहीं खेल पा रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जोन आता है कि सम टाइम आप अच्छा खेल के भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल रहे होते। तो मुझे लगता है कि बाबर की वो एक बड़ी इनिंग्स उसको बहुत से कॉन्फिडेंस को वापस लेके आएगी। वो उनके मसल मेमोरी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बड़ी इनिंग्स जो है रिक्वायर्ड है, विच आई होप ही विल प्ले वेरी सून। देखें, मुझे ज़ात तौर पर लगता है कि एक मेरी सजेशन होगी आईसीसी के लिए, वो श्योरली ये है कि जैसे आईसीसी पूरी दुनिया में T20 लीग को प्रमोट करने के लिए या गेम को प्रमोट करने के लिए T20 NOC अप्रूव्ड कर रहे हैं, सिमिलर टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए, टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी रखने के लिए उनको ज़रूर ये सोचना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड मैच फ़ी जो है वो सब बोर्ड्स के लिए जो है वो लेके आए, ताकि हर एक प्लेयर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो या वो किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन का वो प्लेयर हो, उसको एक मैच फ़ी मिले। उसके साथ मुझे लगता है कि बहुत से प्लेयर्स, नॉट लाइक दे आर कपल ऑफ कंट्रीज़ जिनके पास बड़े अच्छे फैसिलिटेशंस हैं, बहुत अच्छी लुक आफ्टर की जाती है अपने प्लेयर की, लेकिन बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ या बहुत से ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो शायद अपने प्लेयर्स को वो तमाम लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ जो T20 फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करता है, या शॉर्टर पीरियड में ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प आपको मिलती है या सपोर्ट मिलती है, वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो इन जनरल मुझे लगता है कि ऐसे इकदाम करने चाहिए टेस्ट क्रिकेट को, रेड बॉल को बचाने के लिए, कि जैसे T20 को प्रमोट किया जा रहा है, खेल को प्रमोट करने के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। विद द सेम टाइम अगर हम स्टैंडर्ड मैच फ़ी कर दें पूरी दुनिया के टेस्ट प्लेइंग नेशन की, दैट विल डेफिनेटली हेल्प। कभी भी नहीं हुआ, पहले तो मुझे नहीं आइडिया कि खबरें आप तक कैसे पहुंची हैं। मैं इनका सबसे पहले दोस्त हूं, उसके बाद मैं इनका रहनुमा हूं। मैं कोशिश करता हूं कि वो तमाम टैक्टिक्स, वो तमाम चीज़ें जिससे पाकिस्तान टीम बेहतर हो सकती है, एक राइट फार्मूला, एक राइट मैनेजमेंट इनकी मैं कर सकूं, इनको हर बेस्ट फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर सकूं। और इस पूरे महीने के अंदर, सवा महीने के अंदर मेरे थ्रू यही फैसिलिटेशन उन तक प्रोवाइड की गई, और मुझे ज़ाती तौर पर बिल्कुल नहीं लगा कि मैं कहीं पे भी सकता हूँ। ये मेरे बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं। तो मेरे थ्रू कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, और अगर कहीं ये कोई ऐसी खबर कहीं बाहर गई भी है तो मुझे लगता है कि उसमें सदाकत नहीं है। थैंक यू।